Okay, all the participants and resource persons are welcome. And this National Physics Series 2021, and this is the first series based on nuclear physics and subatomic physics. And this series is beneficial for UG and PG students. Also, this series is very useful, equally useful for those students who are preparing for NET or GATE. And similarly, the students who are preparing for civil services also. So during this series, we will cover some important topics, and we have selected some resource persons or reputed resource person. Those are experts in their fields from different institutions and university. Actually, on the request of the students, we are going to start this series because nowadays it is a time of COVID-19 and it is not possible to start face to face teaching. Everything is going online. So that's why we thought and we realized the importance of this series. Today, this is the first day, and we are having a resource person, Dr. Bhavana Joshi. Let me introduce Dr. Bhavana Joshi. Dr. Bhavana Joshi is currently working as assistant professor and head, Department of Applied Physics, Gautam Buddha University, Greater Noida, UP. She has taught different courses at both UG and PG levels. She is having 11 years teaching and research experience. She is guiding research scholars for their PhD work in different areas of experimental field, experimental material science. And to her credit, there are so many publications in national and international journals. Her research areas include nano-dimensional materials, synthesis and characterization, transparent electronics, spintronics, thin film solar cells, carbon materials for supercapacitors, applications, etc. She has also achieved meritorious positions with award and was also the recipient of Research Fellowship of University Grants Commission, New Delhi. Today, the topic of the talk is nuclear decays and their detection through GM counters. The participants are required, if they are having any query, they can write in the chat box. And when this talk will be over, then we will discuss or we can rectify the problems of the students. Now, with these remarks, I invite our today's resource person, Dr. Bhavna Joshi, madam. Please, Bhavna Joshi, madam. Madam, please unmute. Yes, sir. Should I present my screen? Is my screen visible, sir? Yes, ma'am, yes. Okay. Good evening, everyone, dear students, and the organizer, Dr. Mahipal Singh, sir. Thank you for giving me opportunity to present this topic among the students. Uh, Although I am not the expert in this area, but I try to make a basic presentation for the understanding of students. So, topic of today's presentation is nuclear decays and their detection through GM counter. I'm Dr. Bhavna Joshi from Department of Applied Physics, Gautam Buddha University, Greater Noida. So, as the name suggests, इस presentation में it is about the nuclear decays, which are basically spontaneous. कुछ nucleus ऐसे होते हैं जो जिसमें से decays होते रहते हैं
and it is because of some reason, radioactive decay भी इसको बोलते हैं, it is because of some reason, because of some instability in the nucleus, and we will be discussing about the radioactive decay, that is nuclear decay, in further slides. So these are the outlines. I'll be talking about the nucleus, basic about the nucleus, what is a nucleus and how it is formed by proton and neutrons. उसके बाद stability, some nucleus are stable and some are unstable. तो सारे न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहते हैं. in unstable nucleus try to come to the stable nucleus side, so they basically decay. They basically decay through the radioactive decay. उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द रेडियोएक्टिव डिके होते क्या हैं और कितनी तरह के होते हैं. उनमें से देर आर मैनी अलॉट काइंड ऑफ रेडियोएक्टिव डिकेज, और हम डिस्कस करेंगे सम पर्टिकुलर डिकेज विच आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड विच आर मोर जनरल बेसिकली. उसके बाद हम बात करेंगे अल्फा डिके की. अल्फा डिके इज द alpha particle decay from the nucleus is also a important decay which happens spontaneously from different nuclei. और अल्फा डिके को हम वी कैन नॉट एक्सप्लेन बाय क्लासिकल फिजिक्स. अल्फा डिके को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्वांटम फिजिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है. तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है अल्फा डिके के पीछे, उसके बाद वी विल डिस्कस इट. देन अब डिके होते हैं तो हाउ वी विल डिटेक्ट कि सम न्यूक्लियस इज बेसिकली डिकेइंग थ्रू अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके. तो ये डिके हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस हैं, जिसमें से आई विल बी टॉकिंग अबाउट गीगर मुलर काउंटर, which is one of the important device to basically detect these nuclear decays. इसकी theory, principle, applications और limitations we will discuss. So first of all, let me talk about the nucleus. सारे student UG और PG के हैं. Everybody knows about the atom. From the theory of Rutherford and Niels Bohr theory, we know कि जो atom है it is made up of nucleus which is positively charged entity, और उसके उस न्यूक्लियस के अराउंड देर आर ऑर्बिट्स जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. तो न्यूक्लियस इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. रेड कलर का प्रोटॉन दिखाया गया है और व्हाइट कलर का न्यूट्रॉन दिखाया गया है. एंड ब्लू इज द इलेक्ट्रॉन. वी आर नॉट गोइंग टू द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन and its motion around the orbit. We will be focusing our discussion in the nucleus. न्यूक्लियस बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके, एंड दे आर टाइटली बाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस. सो दिस इज अ बेसिक पिक्चर. आप लोगों को सभी को ये इस बारे में पता है. अब हाउ वी रिप्रेजेंट द न्यूक्लियर कंपोजिशन. अगर हमें न्यूक्लियस के बारे में बताना हो कि किसी भी अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और सारे एलिमेंट्स आर बेसिकली एटम्स. किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं. तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं वो बड़े एटम्स हैं, जिसमें कम हैं वो छोटे एटम्स हैं. इसी तरह उसके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में किसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इनका नंबर बहुत ज़्यादा है और किसी में बहुत कम है. तो डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में हम ज़्यादातर कंसर्न है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से. तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर के बेस पे उसको एक कन्वेंशनल सिंबल दिया गया है सारे न्यूक्लियस को. तो यू कैन सी ए जेड एक्स. तो ये जो x है, x इज बेसिकली द केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट. तो अगर पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करूं, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए x विल बी रिप्लेस्ड बाय h. एंड फॉर एग्जांपल क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए x will be replaced by Cl. Similarly for the other elements in the periodic table. तो ये this is the nuclei of any element in the periodic table. A क्या है? Now A and Z. Z represent the atomic number. Atomic number is basically yes. मैम स्लाइड शो नहीं हो रही. नेक्स्ट वाली फर्स्ट स्लाइड ही शो हो रही है अभी तक. Okay. न्यूक्लियर कंपोजिशन की स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? यस मैम, नाउ विजिबल. ओके. आई थिंक फुल स्क्रीन करने से कुछ प्रॉब्लम है. मैं सिर्फ फुल स्क्रीन में नहीं रखती हूँ, ऐसे दिखा देती हूँ आपको. कैन यू सी द कंटेंट? आपको कंटेंट विजिबल है? It is visible.
आई थिंक फुल स्क्रीन करने से कुछ प्रॉब्लम है, मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, और ए जो है कैपिटल ए इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स इज द कॉम्बिनेशन आई मीन एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के अगर हम दोनों का टोटल नंबर लें तो उसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं, उस टर्म को न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो ए इज न्यूक्लियॉन, जेड इज प्रोटॉन, दिस यू हैव टू रिमेंबर। आपको जब आगे डिके पढ़ेंगे तो ये आपको याद रखना है कि ए इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स एंड जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली। सो दिस इज बेसिकली द कन्वेंशनल सिंबल, एस इससे सारे न्यूक्लियाई को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो बड़े साइज के न्यूक्लियाई हों जो रेडियो एक्टिव हैं, और चाहे वो सिंपल हाइड्रोजन हीलियम लिथियम हैं जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है, बट इसका कन्वेंशनल सिंबल यही है, इसी तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन को ब्लू कलर से दिखाया गया है और प्रोटॉन को पिंक कलर से दिखाया गया है। तो न्यूक्लियॉन के जो न्यूक्लियॉन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो आपस में बाउंड कैसे हैं? जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नोन, मे बी यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो हम दो चार्ज के बीच के फोर्स की बात करते हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो भी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है वो भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों अपने आप को रिपल करते हैं। चार्जेस पॉजिटिव और पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो रिपल्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो अट्रैक्शन होगा, वो भी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बट जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं। and theory of nuclear force is different than electrostatic force, so they are bound to each other, neutron and protons are bound together, and because of the strong force they are stable, nucleus आपके stable होते हैं। सो क्लासिफिकेशन में हम स्ट्रॉन्ग और वीक यू कैन सी। अब इसमें बात आती है कि अल्फा डिके भी होता है, बीटा डिके भी होता है और गामा डिके भी होता है, तो अलग अलग तरीके के डिके क्यों हो रहे हैं? तो जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में देर इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन गोइंग ऑन। अगर न्यूक्लियर आपका अनस्टेबल है तो अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा या बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा। तो बीटा पार्टिकल जो होता है, बीटा पार्टिकल इज लाइक इलेक्ट्रॉन। तो आप ये पूछेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों आ रहा है? इफ यू सी दिस फिगर वीक में अगर देखें तो ये जो ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, तो इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये कहाँ से आ रहा है? तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है जो न्यूक्लियस के अंदर चलता रहता है। उसमें क्या होता है, जैसे ब्लू कलर का न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड वाइस वर्सा, प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है और न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसको कन्वर्जन के लिए एक रिएक्शन होगी बेसिकली, तो रिएक्शन में आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इट इज एक्चुअली नॉट इलेक्ट्रॉन, इट इज बीटा पार्टिकल। तो कैसे डिके होता है बीटा पार्टिकल, वी विल डिस्कस इट। तो इसमें जो न्यूक्लियर फोर्स है, इनकी प्रॉपर्टीज यही है कि शॉर्ट रेंज होते हैं। शॉर्ट रेंज का मतलब है न्यूक्लियस की डायमेंशन बहुत कम होती है, छोटा सा होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जब तक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स रहेगा। अगर आप उन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकाल के दूर दूर कर दो तो उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स नहीं रहेगा। सो रेंज का मतलब है कि कितनी डायमेंशन की आप बात कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस की बेसिकली आप बात करते हैं, उसे रेंज बोलते हैं। एंड इट इज बेसिकली फाइनाइट, जो फोर्स का वैल्यू होगी इट विल बी फाइनाइट वैल्यू, इट कैन नॉट बी वेरी लार्ज। एंड एज आई टोल्ड यू कि ये वाला जो फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, इट इज स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स and it is 137 times stronger than the electric force. तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और क्वार्क के बीच का फोर्स है, और इस फोर्स की वजह से बेसिकली न्यूक्लियस आपका जुड़ा हुआ है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स तब होता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है।
तो न्यूट्रल पार्टिकल्स के बीच में आपस में कोई फोर्स नहीं होगा। लेकिन जब हम प्रोटॉन्स की बात करेंगे कि प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स पॉजिटिव पॉजिटिव अगर चार्ज हैं, तो अगर वो पास में रहेंगे तो ऑब्वियसली उनमें एक रिपल्शन होना चाहिए। तो उस रिपल्शन फोर्स में और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का न्यूक्लियर फोर्स है, उस अट्रैक्टिव फोर्स में कंपटीशन चलता है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स है जब आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का बात करें, न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स इज बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है, उसकी वजह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। So this is the classification. Now we come to stability and unstability. क्यों कुछ न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, मतलब उनमें कभी भी रेडियोएक्टिव डिके देखने को नहीं मिलेगा, और कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो रेडियोएक्टिवली डिके होते रहते हैं, तब तक डिके होते हैं जब तक वो स्टेबल नहीं बन जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा वेरिएशन है? हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है और कौन सा न्यूक्लियस अनस्टेबल है? So there is a Segre chart you can see on the screen. There is a Segre chart. It is a graph between the number of neutrons you can see on the y-axis. y-axis में न्यूट्रॉन नंबर है n, और z-axis में x-axis में प्रोटॉन नंबर है। तो अगर न्यूट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, इक्वल अगर हो, तो एक हमें लीनियर लाइन मिलेगी जो कि ये रेड कलर की लाइन से रिप्रेजेंट की गई है। लेकिन इस रेड कलर की लाइन में कोई भी न्यूक्लियस लाइन नहीं करता है, मतलब कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होगा अगर उसमें न्यूट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर बराबर हो। न्यूट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर डिसाइड करता है कि आपका न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल है। इफ यू सी दिस येलो लाइन, यू कैन सी दिस येलो लाइन, और येलो लाइन के अंदर एक बीच में ब्लू कलर के डॉट्स दिख रहे हैं। सो दिस लाइन इज स्टेबिलिटी लाइन। जो भी ये ब्लू कलर के डॉट हैं, ये ब्लू कलर के डॉट बेसिकली आपके डिफरेंट न्यूक्लियाइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज न्यूक्लियाइड्स विच आर लाइंग इनसाइड दिस स्टेबिलिटी लाइन, जो बिल्कुल लाइन में पड़ रहे हैं वो स्टेबल हैं, लेकिन जो आउट ऑफ द लाइन है, मतलब इस येलो कलर के पैच में भी एक बीच में एक लाइन है, वो स्टेबिलिटी लाइन ऑफ स्टेबिलिटी है। उसके ऊपर या उसके नीचे, आई मीन उसके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जो न्यूक्लियस लाई करेंगे, दे विल बी कॉल्ड अनस्टेबल। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसाइड करते हैं कि आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा। तो अगर अनस्टेबल है तो वो तब तक डिके करेगा, डिके रेडियोएक्टिव डिके तब तक उसमें से होगा जब तक कि वो स्टेबल की लाइन में ना आ जाए। सिमिलरली ऊपर में भी जो होंगे उसमें न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, प्रोटॉन कम होंगे, तो वो भी न्यूट्रॉन को डिके करेगा और तब तक डिके करता रहेगा जब तक कि स्टेबिलिटी की लाइन में ना आ जाए। तो दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट if you want to understand the radioactive decay process. So it is written some combination of neutron and proton are more stable than the others. वो others जो हैं वो basically radioactive decay आपको show करेंगे, और radioactive decay will give you these alpha, beta, gamma decays which we are going to discuss. So this chart is again represented in the next slide. Now what is the difference? यहाँ पर आपका टाइप ऑफ डिके फॉर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अब मैंने आपको बताया कि सेग्रे चार्ट में एक लाइन है, बीच में एक लाइन है जिसमें कि जो न्यूक्लियस लाई करेंगे वो स्टेबल हैं, और इसके ऊपर मतलब ब्लू पोर्शन में और नीचे येलो पोर्शन में, ऑरेंज पोर्शन में या येलो पोर्शन में जो न्यूक्लियस लाई करेंगे। नाउ दिस न्यूक्लियाई कहाँ लाई कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड इट। इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो डिके से क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होंगे, वो तब तक चेंज होंगे जब तक इस ब्लैक लाइन में न्यूक्लियस नहीं आ जाता है। तो नाउ ये कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कलर डिके। कौन सा डिके पॉसिबल है? जो भी आपके न्यूक्लियस यहाँ पर लाई करेंगे ब्लू पोर्शन में, दे विल डिके थ्रू बीटा माइनस। बीटा माइनस इज पॉजिट्रॉन, वी विल डिस्कस इट। पॉजिट्रॉन डिके होगा इस पोर्शन में, ऑरेंज इज बीटा प्लस। जो यहाँ पर लाई करेंगे दे विल डिके थ्रू बीटा डिके। येलो कलर इज अल्फा, जो जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इस तरह से होंगे कि वो यहाँ पर लाई कर रहा है, मतलब यू कैन फाइंड द रेशियो। यहाँ ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, तो रेशियो से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियस लाई करेगा। तो उसमें अल्फा डिके होगा, और अल्फा डिके होते होते वो लाइन ऑफ स्टेबिलिटी में आ जाएगा। तो स्टेबल बनना चाहते हैं बेसिकली सारे न्यूक्लियस जो हैं, जो भी अनस्टेबल हैं, जो भी रेडियोएक्टिव डिके होते हैं, वो बेसिकली स्टेबल बनना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए डिके होता है उनमें।
So this chart is very important. डिके होता क्यों है? डिके इसलिए होता है क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए न्यूक्लियस को. न्यूट्रॉन्स स्टेबलाइज द न्यूक्लियस. न्यूट्रॉन्स आर लाइक ग्लू. दे बेसिकली न्यूट्रॉन क्या करते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को एक ग्लू की तरह जोड़ते हैं. अगर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर तब भी अनस्टेबिलिटी आएगी, और बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन हो जाएंगे तब भी अनस्टेबिलिटी आएगी. तो दोनों का रेशियो इस तरह से हमें मेंटेन करना होता है जिससे कि रेशियो जो हो वो लाइन ऑफ स्टेबिलिटी में लाई करे, और इस वजह से न्यूक्लियर डिके होता है. एंड न्यूट्रॉन स्टेबलाइज द न्यूक्लियस बिकॉज दे अट्रैक्ट ईच अदर, एंड प्रोटॉन्स विच हेल्प ऑफसेट द इलेक्ट्रिकल रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स. एज आई टोल्ड यू कि प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होगा, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा. तो दोनों को हमें बैलेंस करना है बेसिकली, जिससे कि अट्रैक्शन ज्यादा हो और रिपल्शन कम हो. सो दैट इज वाई there is a decay. As a result, the number of protons increases and increasing ratio of neutrons. Let me not read it. तो प्रोटॉन अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए प्रोटॉन को बाहर निकालना होगा न्यूक्लियस से. तो वो डिके के थ्रू बाहर निकलते हैं. अगर न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उस केस में भी स्टेबल नहीं होगा न्यूक्लियस, तो न्यूट्रॉन आपका बाहर निकलेगा बीटा डिके के थ्रू. सो all decay makes the combined term of radioactive decay, which is a general phenomena which happens in case of radioisotopes. Nuclear physics में radioactive decay is very important, और ये इसीलिए होता है क्योंकि जो रेशियो है it is not suitable for nucleus to be a stable nucleus. तो अनस्टेबिलिटी को रिमूव करने के लिए हमें स्टेबल न्यूक्लियस कंसीडर करना होता है, और स्टेबल होने के लिए डिके होता है. सो the same thing is written over here also कि unstable nucleus spontaneously decay होता है. मतलब we cannot control the decay, we cannot control, we know that decay is happening, और उसकी फिजिक्स भी हमें पता है, उसकी मैथमेटिक्स भी हमें पता है, हाफ लाइफ हमें पता है कि क्या होती है. लेकिन अगर कोई न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव है तो वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस विल डिके, एंड इट विल डिके स्पॉन्टेनियसली. उसकी जो हाफ लाइफ होगी, या वो कितने टाइम में आधा रह जाएगा या कितने टाइम में आधे से भी आधा रह जाएगा, वो एलिमेंट पे ही डिपेंड करता है. तो अभी हमें कई सारे एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि जैसे अगर कार्बन की मैं बात करूं तो कार्बन का हाफ लाइफ कितनी होती है, बट जब इसकी स्टडी स्टार्ट की गई होगी स्टार्टिंग में रेडियो एक्टिविटी को लर्न करना स्टार्ट किया होगा साइंटिस्ट ने, उस केस में इट वाज रियली इंटरेस्टिंग फिनोमिना कि किस तरह से डिके होता है और कैसे हम उसे मेजर कर सकते हैं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज जब होते हैं तो डिफरेंट आइसोटॉप बनता है. अब अगर हम आइसोटॉप की बात करें तो आइसोटॉप जो होता है वो सेम एलिमेंट का होता है. जैसे आपने यूरेनियम के बारे में अगर पढ़ा होगा तो यूरेनियम 238 मास नंबर इज ऑल्सो पॉसिबल, एंड यूरेनियम 235 मास नंबर इज ऑल्सो पॉसिबल. तो यूरेनियम 238 से 235 में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो वो यूरेनियम ही रहेगा, वो एलिमेंट सेम रहेगा. तो न्यूट्रॉन अगर चेंज हो रहे हैं तो एलिमेंट सेम रहेगा, सब एलिमेंट सेम है और मास नंबर चेंज हो रहा है तो उसे बोलते हैं आइसोटॉप. सिमिलरली अगर प्रोटॉन चेंज हो रहा है अल्फा डिके के थ्रू तो उसमें जो होगा आपका एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा. यूरेनियम अगर चेंज हो रहा है तो वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे होगा वी विल डिस्कस, डिके के थ्रू पढ़ेंगे इसको. उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि पार्टिकल ही निकल रहे हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल ही निकल रहे हैं, गामा डिके में रेडिएशन भी निकलते हैं. एंड अल्फा की बात करें या बीटा की बात करें या गामा की बात करें, पॉजिट्रॉन एमिशन, इसमें जो भी पार्टिकल निकल रहे हैं या रेडिएशन निकल रहे हैं, दे आर हाईली एनर्जेटिक. इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है. इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में या फिर जो जहाँ पर भी न्यूक्लियर का काम होता है वहाँ पर वी हैव टू see the safety rules also, क्योंकि these are very harmful for human body also. अल्फा इतना harmful नहीं है, but बीटा गामा these radiation and particles are really harmful. तो इनकी क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, they can penetrate inside the body of humans and they can basically create some damage. तो ये चीज़ देखनी भी बहुत ज़रूरी है कि इनसे कोई हेल्थ हैजार्ड ना हो. तो न्यूक्लियर डिके एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि बहुत सारे तरीके के होते हैं, बट यहाँ पर 5 मैंने इंक्लूड किए हैं, 5 टाइप्स. वन इज द अल्फा डिके,
then beta decay, gamma decay, positron emission, and electron capture. Alpha is the nuclei of helium. It is heavier as compared to beta. Beta is like electron, and gamma is a radiation. Gamma electromagnetic wave में भी, इस स्पेक्ट्रम में भी गामा रेडिएशन आता है, और इट इज हाईली एनर्जेटिक. एक्सरे से पहले आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाले स्पेक्ट्रम में. इट इज हाईली एनर्जेटिक. एंड अल्फा, बीटा, पॉजिट्रॉन, दीज आर पार्टिकल्स. एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर, अगर न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग कैप्चर्ड, एंड बिकॉज ऑफ विच क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में ही कन्वर्जन हो रहा है बेसिकली. या तो प्रोटॉन बाहर आ रहे हैं, या न्यूट्रॉन बाहर आ रहे हैं, या फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो यही सब होगा. ऐसा नहीं होगा कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया. नो, इट इज नॉट लाइक दैट कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है. न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली बीटा पार्टिकल इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन इन द टर्म्स कि उसका जो चार्ज होता है वो -1 होता है. उसका चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए हम उसे बीटा इलेक्ट्रॉन जैसा बोल देते हैं. So let me tell you this concept through this figure. In case of alpha decay, ये वाला न्यूक्लियस है. न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा? नाउ आई टोल्ड यू कि जो अल्फा डिके होता है, अल्फा डिके इज बेसिकली द हीलियम न्यूक्लियस. हीलियम न्यूक्लियस हैज 4 मास नंबर एंड 2 प्रोटॉन्स, सॉरी. तो ये दिस इज अल्फा पार्टिकल बेसिकली. जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियस होगा वो चेंज हो जाएगा वाई में, और मास नंबर विल बी डिक्रीज बाय 4, और जो एटॉमिक नंबर होगा इट विल बी डिक्रीज बाय 2. सो रिप्रेजेंटेशन में दिस इज अ न्यूक्लियस. इसमें से 4 आपके न्यूक्लियन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल गए, बाहर निकल गए, और आपका जो न्यूक्लियस बचा उसमें 2 आपके प्रोटॉन कम थे और 2 न्यूट्रॉन भी कम थे. सो इट इज डिक्रीज बाय 4, ए डिक्रीज बाय 4 क्योंकि 2 न्यूट्रॉन निकल गए और 2 प्रोटॉन निकल गए. एंड जेड डिक्रीज्ड बाय 2, 2 प्रोटॉन निकल गए. एज आई टोल्ड यू, ए आपका टोटल होता है न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और जेड होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो यहाँ से 4 कम होंगे और यहाँ से 2 कम होंगे. सिमिलरली बीटा डिके में क्या होगा, बीटा डिके में एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बीटा पार्टिकल निकल रहा है. तो इससे क्या होगा, एक आपका दिस विल बेसिकली चेंज इनटू बीटा डिके में मैंने बताया कि आपका जो न्यूट्रॉन होगा वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा. यू कैन सी यहाँ पर आपका वाइट वाला चीज जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो रही है. तो आपका जेड इज इंक्रीज्ड बाय 1, मतलब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो 1 नंबर से इंक्रीज हो जाएगा. सिमिलरली गामा में क्या होता है, गामा में कोई चेंज नहीं होगा. गामा के केस में क्या होगा, जो यहाँ पर ये रेड कलर की लाइन दिखाई है, इट इज शोइंग कि आपका जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में है. जैसे एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन होता है ऊपर के लेवल में, जब वो नीचे आता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है, एक्सरे. इसी तरह से न्यूक्लियस भी एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है. जब वो डीएक्साइट होगा तो वो गामा रेडिएशन को एमिट करेगा. इसमें ए और जेड अनचेंज रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा ए और जेड में, क्योंकि कोई पार्टिकल नहीं एमिट हो रहा है, इट इज जस्ट द रेडिएशन. सिमिलरली पॉजिट्रॉन इज लाइक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन. इस केस में क्या अंतर आएगा, केवल इसमें भी हमारा एक पॉजिटिव ई निकल रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, जेड डिक्रीज होगा 1 से. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन कैप्चर में 1 बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग कैप्चर्ड. सो इस केस में भी क्या होगा, 1 प्रोटॉन विल गेट कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज बाय 1, एक कम हो जाएगा प्रोटॉन. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन चला गया न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऐसा नहीं है. बीटा एमिशन या बीटा पॉजिट्रॉन एमिशन या इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये प्रोसेस हैं जिनकी वजह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है. सो दिस इज लाइक दैट. तो ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है, किया नहीं जाता. इट हैपेंस इटसेल्फ स्पॉन्टेनियसली. दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. इट हैपेंस इटसेल्फ. इसे कोई कंट्रोल नहीं करता है. इट हैपेंस. ऐसा नहीं है कि हम रिएक्शन करा रहे हैं लैब में. नो. रेडियोएक्टिव मटेरियल अगर आप रख देंगे कहीं पर तो उसमें से रेडिएशन निकलते रहेंगे. दैट रेडिएशन यू कैन डिटेक्ट. अगर मान लो यूरेनियम रखा, तो यूरेनियम से अगर एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो आप उस अल्फा पार्टिकल को के एमिशन को डिटेक्ट करके बता देंगे कि अल्फा पार्टिकल इससे निकला और इसकी जो मास नंबर या एटॉमिक नंबर की वैल्यू थी वो ऐसे कन्वर्ट हो गई. So this is another representation.
अगर इफ यू हैव न्यूक्लियस अगर आपके पास है तो अल्फा रेडिएशन होगा तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल निकलेगा तो इट इज लाइक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका चार्ज बीटा पार्टिकल का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। डिफरेंस ये है कि इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, एनर्जी इज क्वाइट हाई। सिमिलरली गामा की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। गामा रेडिएशन जो होता है इट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो इट इज हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल, हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन नॉट पार्टिकल। So this is also nuclear decay. So this is the same thing as I told you, helium nucleus निकलेगा, I mean another representation of alpha decay. So this nucleus will get changed. In this case nucleus will not get changed, only the beta this neutron will get converted into proton, proton एक बढ़ जाएगा। और गामा रेडिएशन के केस में कोई चेंज नहीं आएगा, ए और जेड विल रिमेन द सेम, ओनली वन रेडिएशन, मतलब एक फोटोन आपका निकलेगा बेसिकली। तो ये तब होगा जब एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होगा आपका पूरा न्यूक्लियस। सो दीज आर सम एग्जांपल्स यू मस्ट हैव रेड आल्सो। ये न्यूक्लियर का बेसिक एग्जांपल्स मैंने लिए हैं जो शायद आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। सो फर्स्ट इज द अल्फा डिके, यूरेनियम 238 ही लिया है। एज आई टोल्ड यू कि यूरेनियम 238 से अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो सिंस प्रोटॉन का नंबर भी चेंज हो रहा है और न्यूट्रॉन का नंबर भी चेंज हो रहा है, तो होगा क्या, जो मटेरियल एलिमेंट होगा, एलिमेंट खुद इटसेल्फ कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूरेनियम इज कन्वर्टेड इनटू थोरियम, थोरियम में कन्वर्ट हो गया अल्फा पार्टिकल के डिके के बाद। जबकि अगर हम बीटा डिके की बात करें थोरियम से, इस थोरियम से अगर हम थोरियम कन्वर्ट हो रहा है, थोरियम से अल्फा नहीं निकल रहा है लेकिन बीटा निकल रहा है, तो बीटा जब निकलेगा तो यहाँ पर आपका एक प्रोटॉन बढ़ गया, 90 था 91 हो गया, तो ये कन्वर्ट हुआ प्रोटेक्टिनियम में। Pa इज द प्रोटेक्टिनियम एलिमेंट, और यहाँ पर न्यूट्रॉन में नहीं चेंज आया, प्रोटॉन में चेंज आ गया, मतलब एक न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। टोटल नंबर ये सेम रहा, 234 था, 234 ही रहा। सिमिलरली गामा रेडिएशन में आपका एलिमेंट जो गामा रेडिएशन निकलेगा, गामा रेडिएशन अल्फा डिके के साथ निकल रहा है, यहाँ पे अल्फा भी हो रहा है, गामा रेडिएशन, दो गामा फोटोन भी निकल रहे हैं। तो ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन आर सेम। जनरली हम गामा रेडिएशन को न्यूक्लियर रिएक्शंस में शो नहीं करते हैं बिकॉज इट इज जस्ट द रेडिएशन, ये कोई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर को चेंज नहीं करता, इसलिए गामा रेडिएशन को चेंज नहीं करता है। बट व्हेन इट कम्स अंडर डिके तो गामा रेडिएशन को भी रिप्रेजेंट करना जरूरी है, but it is important that gamma radiation should also be studied. This I have already told you, alpha decay. A very beautiful physics of alpha decay is there which you should know. मतलब ये बेसिकली उसका नहीं पार्ट है आपका, न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट नहीं है, बट न्यूक्लियर फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स लाना इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अल्फा डिके को हम क्लासिकल फिजिक्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि अल्फा डिके इज ए क्वांटम फिनोमिना। अल्फा डिके किसी न्यूक्लियस के अंदर से दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, तो वो क्लासिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप कहेंगे कि क्लासिकली निकल सकते हैं पार्टिकल्स तो पॉसिबल नहीं है। वी अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट बाय यूजिंग द क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग क्या होती है? क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग में क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग में एक होता है पोटेंशियल बैरियर कंसेप्ट। पोटेंशियल बैरियर की हाइट जितनी होती है और पार्टिकल की एनर्जी जितनी होती है, इट इज़ वेरी हाई। पोटेंशियल बैरियर बहुत हाई है और पार्टिकल की एनर्जी बहुत कम है, तो पार्टिकल को आइडियली पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने की क्रॉस नहीं करना चाहिए क्योंकि एनर्जी बहुत कम है, इट इज़ नॉट एबल टू क्रॉस इट, बट स्टिल क्रॉस नहीं करता, उसके बावजूद भी वो निकल जाता है बाहर। तो वो कैसे निकल जाता है? वो क्वांटम मैकेनिकली टनल कर जाता है। पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं किया, जैसे एक बॉल है उसमें हम बॉल को हिट कर रहे हैं, अगर आप बॉल पे हिट करते रहोगे तो बॉल कभी भी बॉल की दूसरी तरफ नहीं जाएगी, लेकिन जब आप बॉल को बॉल की हाइट से ऊपर हिट करोगे तो ऑब्वियसली बॉल दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आपको बॉल को बॉल की हाइट से ऊपर फेंकने की जरूरत नहीं है, इट कैन टनल थ्रू द, मतलब इट इज पोटेंशियल बैरियर इज लाइक अ वॉल। तो अगर एनर्जी नहीं भी है पार्टिकल के पास, स्टिल इट कैन टनल थ्रू द बैरियर। तो वो टनलिंग जो हो रही है, वो टनलिंग प्रोसेस क्लासिकल फिजिक्स में नहीं आता है, या ये कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग का कोई एनालॉग नहीं है क्लासिकल फिजिक्स में। क्लासिकल फिजिक्स में कभी भी पार्टिकल टनल नहीं कर सकता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में
क्वांटम फिजिक्स में जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो टनल भी कर रहा है और बाहर भी आ रहा है। तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू अंडरस्टैंड कि हाउ अल्फा डीके अकर्स। तो अल्फा डीके की थ्योरी हम हमेशा क्वांटम फिजिक्स से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो बैरियर है उसकी हाइट है 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो अल्फा पार्टिकल है जो बाहर आएगा उसकी एनर्जी है केवल 4 से 9, लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 टाइम ज़्यादा हाइट का बैरियर है, तब भी वो बाहर आ रहा है। तो इट इज़ व्हाई इट इज़ हैपनिंग इफ यू अंडरस्टैंड दिस पोटेंशियल एनर्जी टोटल वर्सेस डिस्टेंस कर्व। जब तक अल्फा पार्टिकल अंदर है तो इट इज बाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस विद हाईली अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। वो न्यूक्लियॉन्स उसे इतने स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं कि उसका बाहर आना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अल्फा पार्टिकल क्या करता है, न्यूक्लियर की वॉल को हिट करता रहता है और तब तक हिट करता रहता है जब तक वो इस पर्टिकुलर बैरियर को, दिस इज द बैरियर, ये बैरियर है, इस बैरियर को क्रॉस ना कर जाए। तो ये जो क्रॉसिंग हो रही है बैरियर की, ये क्रॉसिंग इज बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स में ही बैरियर की क्रॉसिंग पॉसिबल है, क्लासिकल में पॉसिबल नहीं है। तो जब तक यहाँ पर है तब तक अट्रैक्टिव फोर्स है। जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर आता है, न्यूक्लियस के बाहर जैसे ही आता है, वैसे ही जो फोर्स होता है वो चेंज हो जाता है अट्रैक्टिव से रिपल्सिव। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज है और जो अल्फा पार्टिकल है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। भाई इट इज हैविंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जब एक दूसरे के सरफेस पर आएंगे तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस इज अ बिगर एंटिटी, बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं उसमें, और अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन्स हैं, दोनों में रिपल्शन होगा। तो अल्फा पार्टिकल जैसे ही न्यूक्लियस के बाहर निकलेगा वैसे ही उसमें हाईली रिपल्सिव फोर्स लगेगा और वो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। सो अल्फा पार्टिकल कम्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस लाइक दिस। तो यहाँ पर जैसे ही पहुंचेगा वैसे ही अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो अल्फा पार्टिकल की जर्नी होती है, दिस इज ओनली अंडरस्टूड बाय यूजिंग द क्वांटम फिजिक्स, नॉट बाय द क्लासिकल फिजिक्स। और ये भी बुक्स में आप पढ़ोगे कि अल्फा पार्टिकल को बाहर आने से पहले न्यूक्लियस की वॉल को 10 टू द पावर 25 टाइम्स हिट करना पड़ता है, तब वो बाहर, उसकी बाहर आने की प्रोबेबिलिटी तब बनती है जब वो 10 टू द पावर 25 टाइम्स हिट कर चुका होता है। सो दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल टू basically understand this physics. That is why I have included in this presentation. So it is this is the probability of transition. तो अगर क्वांटम फिजिक्स का आप लोगों को आइडिया है तो वी डोंट टॉक अबाउट द पार्टिकल एज अ particle in quantum, it is like a wave having a wave function. तो wave function जो होता है वो बैरियर की दूसरी तरफ हमें मिल जाता है because of the penetration, and there is a probability of transition which depends on the height of the barrier. जो कितना कितना हाइट है बैरियर की, जो मैं 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रही हूँ वो हाइट ही होगी, और कितनी एनर्जी है पार्टिकल की, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी। तो इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द बैरियर पे डिपेंड करता है और एनर्जी ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो एनर्जी कम भी है तब भी पार्टिकल इधर आ सकता है। So next is the half life. It is also a very important concept. Half life क्या होती है? Half life is basically the amount of time, कितने टाइम में कोई एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिवली डिके हो रहा है, जिसमें से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, वो कितने टाइम में अपने क्वांटिटी का हाफ रह जाएगा। सो दैट इज नोन एज कितने टाइम में, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, कितने टाइम में आधा रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड दी हाफ लाइफ ऑफ दैट एलिमेंट। और हाफ लाइफ अलग अलग एलिमेंट की वैल्यू हाफ लाइफ की अलग अलग होती है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद। सो हेयर यू कैन सी अ ग्राफ, इसमें एक्स एक्सिस पे आपका टाइम होता है विच इज इन ईयर्स, एंड वाई एक्सिस पे इट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मतलब मान लो आपने 100 न्यूक्लियाई से स्टार्ट किया, 100 न्यूक्लियाई से स्टार्ट किया, तो उससे 50 रह जाने, मतलब जैसे यूरेनियम से हमने स्टार्ट किया, यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल निकला, वो थोरियम में कन्वर्ट हुआ, फिर थोरियम बेसिकली आपका प्रोटेक्टिनियम में कन्वर्ट हुआ, तो बेसिकली थोरियम थोरियम नहीं रह गया, वो चेंज हो गया। तो जैसे ही डिके होगा वैसे ही आपका न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा। तो अगर 100 हमने 100 न्यूक्लियाई से स्टार्ट किया और वो 50 कितने टाइम के बाद रह जाएंगे, उसे बोलते हैं हाफ लाइफ।
in simple language, it is called the half life. So you can see it, half life को हम अंडरस्टैंड करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से. तो एन नॉट इज दी स्टार्टिंग न्यूक्लियाई नंबर. एन नॉट से हमने स्टार्ट किया था और ये एक्सपोनेंशियली डिके होता है. आई विल शो यू द फॉर्मूला क्या होता है. तो हाफ रह जाने में कितना टाइम लगेगा, बेसिकली दैट इज कॉल्ड दी हाफ लाइफ. तो कार्बन 14 के लिए, कार्बन 14 इज अ न्यूक्लियाई, उसके लिए हाफ लाइफ जो है वो है 5730 ईयर्स, 5730 ईयर्स इज द हाफ लाइफ फॉर कार्बन 14. इसी तरह से अलग अलग एलिमेंट्स की हाफ लाइफ की वैल्यू अलग अलग होती है. सिमिलरली अगर आपको फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद देखना है कि कितने टाइम बाद उसका भी आधा रह गया, तो हमें एन नॉट बाई 2 से स्टार्ट करना होगा. एन नॉट 2 इज आवर स्टार्टिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. तो एन नॉट बाई 2 का आधा होगा एन नॉट बाई 4, फिर एन नॉट बाई 4 का आधा एन नॉट बाई 8. तो इस तरह से स्टार्ट करते करते हम देखते हैं कि कितने टाइम बाद उसके कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रह गए हैं. सो इट इज़ वेरी गुड टेक्निक फॉर फाइंडिंग आउट द एज ऑफ सम वेरी ओल्ड कार्बन डेटिंग जिसे बोलते हैं, उससे हम बहुत पुरानी पुरानी उस चीज़ों की लाइफ निकाल सकते हैं. So this is the radioactive decay. It is very important law in nuclear physics. So as I told you कि it is depending on the exponential decay हो रहा है. Exponential decay कैसे होता है? It depends on this formula which is written over here. Number of nuclei at a particular time t is equal to n naught. n naught वो न्यूक्लियाई है नंबर जिससे कि हमने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, देन e to the power minus लैम्डा टी. इट इज द डीके कांस्टेंट. तो अगर इससे फॉर्मूले से यहाँ पर एन नॉट बाई 2 रख के अगर आप हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकालें तो हाफ लाइफ टी हाफ कम्स आउट टू बी नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा. सो यहाँ से हम लोग वी कैन फाइंड आउट द हाफ लाइफ ऑफ एनी एलिमेंट if you know the decay constant for that particular element. So this is also very important concept you can talk about. So this is the same thing, only the difference is इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है आपको कि अगर हम स्टार्ट करें आपके 10 लैक्स न्यूक्लियाई से, टाइम जीरो का मतलब है द स्टार्टिंग टाइम, देन 5 लैक्स होने में जितना टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड द हाफ लाइफ. तो अगर हम ऐसे ही हाफ लाइफ का 10 टाइम्स देखें, हाफ लाइफ जितनी भी है इंटू 10, तो आपके जो न्यूक्लियाई रह जाएंगे वो रहेंगे 977. तो ये कैलकुलेशन कैसे आई, ये नंबर कैसे आया? ये नंबर आया आपका इसी फॉर्मूले से जो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिया है. तो ये कैलकुलेशन हम न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं और वी कैन फाइंड आउट कि किस पर्टिकुलर टाइम के बाद आपके न्यूक्लियाई ओवरऑल कन्वर्ट हो जाएंगे किसी दूसरे न्यूक्लियाई में रेडियोएक्टिव डिके के थ्रू. So this is very important to understand. Half life is very important, and this decay is very important, and it is also very important for the for finding out the age of any particular nuclei. Very important for nuclear physics. This concept is very important for the nuclear physics. Now we will go to the second part of this talk. हाउ विल डिटेक्ट इट, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि अल्फा पार्टिकल निकला है किसी न्यूक्लियस से, या बीटा निकला है या गामा निकला है, कोई ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे कर सकते हैं. तो वन ऑफ द डिवाइस, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, वन ऑफ द डिवाइसेस द जीएम काउंटर. गीगर मूलर वर टू साइंटिस्ट हु डिजाइन दिस काउंटर. काउंटर एज द नेम सजेस्ट, काउंटर मतलब काउंट करेगा. जैसे ही कोई पार्टिकल इसमें पड़ेगा वैसे ही हमें पता लग जाएगा इसके काउंटर से कि अल्फा पार्टिकल का डिके हुआ है. सो हेयर यू हैव सोर्स AM240 लिखा है यहाँ पे, रेडियोएक्टिव सोर्स होगा. इससे जब आपका अल्फा पार्टिकल या बीटा या गामा निकलेगा तो वो इस ट्यूब के अंदर एंटर करेगा. तो इसके अंदर कुछ होगा, उसकी वजह से यहाँ पे आपका बेसिकली रेट मीटर इट विल टेल यू कि यहाँ से कुछ डिके हुआ है और उस डिके के करस्पॉन्डिंग आपको एक काउंट मिल जाएगा. तो इसकी कंस्ट्रक्शन एंड दिस विल सी. तो GM काउंटर इज डेवलप्ड एज ए पार्टिकल डिटेक्टर फॉर मेजरिंग आयनाइजिंग रेडिएशन in 1928 by Geiger and Muller. There were two scientists who developed this. Or it is very sensitive instrument to detect the nuclear decays.
न्यूक्लियर डिके में अल्फा बीटा गामा इन तीनों के लिए इट इज वेरी सेंसिटिव, विच इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिस्कस्ड डिकेज. अल्फा बीटा गामा की बात हम सबसे पहले करते हैं, एंड दे कैन बी इजीली डिटेक्टेड बाय यूजिंग दिस काउंटर. और इसका जो प्रिंसिपल होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयनाइजेशन ऑफ गैस. जो ट्यूब होती है, इसके अंदर एक ट्यूब के अंदर गैस होती है और या गैस का मिक्सचर होता है, और जब भी कोई रेडिएशन उसके अंदर इंसिडेंट होता है, न्यूक्लियर रेडिएशन इंसिडेंट होता है, तो ऑब्वियसली क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है रेडिएशन की, तो वो क्या करेगा, गैस को आयनाइज करेगा. गैस बेसिकली पहले स्टार्टिंग ऑर्गन या किसी और गैस से, ऑर्गन नियॉन से की गई थी. जैसे ही उसमें अल्फा पार्टिकल पड़ेगा तो आयनाइज हो जाएगा. आयनाइज मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाता है ऑर्गन से, तो इट बिकम्स Ar प्लस एंड इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन भी रहता है गैस के अंदर और ऑर्गन आयंस भी रहते हैं. तो आयनाइज का मतलब है कि आयंस भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. So this is the schematic. You have incident ionizing radiation, this blue line, and you have some gas molecule over here. You have a wire. वायर को एनोड बोलते हैं. और ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर कैथोड होता है. और जैसे ही आपका रेडिएशन इंसिडेंट होता है तो आयनाइज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा. सिंस ये एनोड है, एनोड मतलब पॉजिटिव, वायर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू सर्किट में फ्लो करेंगे, तो करंट आएगी, करंट के थ्रू आपका काउंट आ जाएगा. बट इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है विच विल डिस्कस, कि हमारे पास फॉल्स काउंट ना आ जाए. क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन है और क्योंकि हाईली एनर्जेटिक है, तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन ना आके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए हैं. तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो फॉल्स काउंट आने के चांसेस रहते हैं. तो गीगर मूलर काउंटर में इस तरह से ज्योमेट्री उसकी चेंज की गई है कि फॉल्स काउंट ना आए हमारे पास. सो लेट अस डिस्कस इट. So there is an electrical current measuring device. On the basis of this current, we can measure the counts कि कितने basically आपके radiation incident हुए हैं. So it consists of a fine wire as I told you, with a cylinder है, एक wire है और उसमें incident radiation आ रहा है. एंड जो आपका सिलेंडर होता है वो ग्लास का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है. उसको कैथोड बना के रखना होता है. कैथोड मीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड. और नेगेटिव ये माना जाता है कि नेगेटिव कैथोड की तरफ आपके जो पॉजिटिव आयंस होंगे, गैस के जो पॉजिटिव आयंस होंगे, वो बेसिकली उनको कैथोड तक पहुंचना है और इलेक्ट्रॉन्स को एनोड के थ्रू सर्किट में पहुंचना है. बट जब हम प्रैक्टिकली कोई चीज करते हैं तो प्रैक्टिकली जो हम सोचते हैं, अगर एग्जैक्टली वैसा नहीं हो रहा है, देयर इज समथिंग एल्स हैपनिंग्स इन दी एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और आपको पता है कि एरर आने के चांसेस रहते हैं. तो कुछ एरर इसलिए आ जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट पार्टिकल्स होते हैं और जो आयंस होते हैं वो बहुत हैवी पार्टिकल्स होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन तो वायर तक बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन आयंस को कैथोड तक जाने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट होता है. तो उसके लिए क्या किया जाता है, वी बेसिकली टेक अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ऑर्गन 90% ऑर्गन होती है एंड एथिल अल्कोहल 10% एथिल अल्कोहल हम लेते हैं. द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल कैथोड वेरीज फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर. तो जो ट्यूब की डायमीटर होती है इसको भी कंट्रोल करके रखना होता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने रेडिएशन उसमें पड़ रहे हैं. और मतलब इट डिपेंड्स ऑन दी एप्लीकेशन, कहाँ पर अप्लाई करना है. हमें न्यूक्लियर रिएक्टर में अप्लाई करना है या हमें सिंपल अपनी लेबोरेटरी में यूज करना है, तो उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा वाला काउंटर, कितनी डायमीटर का या कितनी लेंथ का ट्यूब अपने लिए परचेज करें. सो इट डिपेंड्स ऑन दैट. तो आयनाइजेशन ऑफ गैस पे बेस्ड होता है इसका. तो एज आई टोल्ड यू कि इट इज आयनाइजिंग पार्टिकल थ्रू न्यूक्लियर डिके. व्हेन एन आयनाइजिंग पार्टिकल का मतलब है जो आयनाइज करेगा गैस को. इट मे बी अल्फा, इट मे बी बीटा, इट मे बी गामा, और इट मे बी एनी अदर पार्टिकल. इट पासेस थ्रू द गैस इन जीएम ट्यूब. इट आयनाइजेस द गैस. आयनाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंट्रल वायर एंड काउंटेड एज अ सिंगल वोल्टेज पल्स. एक इलेक्ट्रॉन वायर में पहुंचेगा तो करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो की होने की वजह से हमें काउंट मिलेगा. और वायर एनोड इज सराउंडेड बाय अ स्लो मूविंग पॉजिटिव आयन शीट विच इन टर्न रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि आयंस बहुत जल्दी से ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं कैथोड की तरफ, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज रिड्यूस हो जाता है. और उसको करने के लिए बेसिकली व्हाट वी डू, देयर इज अ डिक्रीज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा,
कैथोड में आपके पॉजिटिव आयन जाने चाहिए और इधर वायर में आपके इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए एक साथ, लेकिन एक साथ ना जाने की वजह से आपका डिस्चार्ज स्टॉप हो जाता है। तो इसको करने के लिए क्या करना होता है, हमें आयंस को किसी तरह से कैथोड तक पहुंचाना होता है। सिंस दी मतलब यू हैव टू बेसिकली न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव आयन, उसको कैथोड तक जल्दी पहुंचे, वो न्यूट्रलाइज हो, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि पॉजिटिव आयंस तो हैवी हैं, दे विल टेक सम टाइम, और इलेक्ट्रॉन लाइट है तो वो जल्दी से सर्किट में आ जाएंगे, तो आपके काउंट गलत आने लगते हैं। तो सिंस द पॉजिटिव आयंस टेक्स इनफ टाइम टू मूव अवे फ्रॉम द एनोड, देयरफॉर ड्यूरिंग दिस पीरियड जीएम काउंटर रिमेन्स डेड। तो एक काउंट आया आपका, एक काउंट होने के बाद थोड़ी देर के लिए जब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उसके बीच के टाइम में आपका काउंटर डेड रहता है, मतलब इट डज नॉट डिटेक्ट दी basically it does not detect the ionizing radiation, that is known as dead time. काउंट करने और पहला काउंट और दूसरा काउंट, उन दोनों के बीच के टाइम में इट इज डेड। Dead time is the time during which the counter fails to record any more ionizing particle entering the counter. ये इसलिए किया जाता है ताकि false count ना आए। When the positive ions move away from the anode towards the cathode, the value of electric field increases and another discharge takes place. It is essential that the electric discharge caused by the first ionizing particle complete. तो पहले आयनाइजिंग पार्टिकल से जो डिस्चार्ज हुआ वो पूरा खत्म हो जाना चाहिए जबकि दूसरा पार्टिकल आए। अगर हमारा डिस्चार्ज खत्म नहीं हुआ और हम आयनाइजिंग पार्टिकल को भेजते रहेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो कि आयनाइजेशन की वजह से आए हैं और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन से जनरेट हुए हैं। तो करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो जो काउंट होंगे वो एक्चुअल काउंट नहीं होंगे, दे विल बी मॉडिफाइड काउंट। वी डोंट वांट दैट। तो इसीलिए ये जो क्वेंचिंग है, ये जो डिस्चार्ज क्वेंचिंग ऑफ द डिस्चार्ज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएम काउंटर। इसीलिए ये डेड टाइम वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई किया गया है, डेड टाइम एंड रिकवरी टाइम। So this is the schematic which is same as we discussed, वायर, सिलेंडर और उसकी बाहर की इलेक्ट्रॉनिक्स। एक आपका वोल्टेज सोर्स होगा और ये एम्पलीफायर होगा, काउंट आया, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसकी वजह से करंट के थ्रू आप एम्पलीफाई करके यहाँ पे काउंटर मिल जाएगा हमें। सो दिस इज द सेम थिंग विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। मैम यस मैम जीएम काउंट क्या करता है? नंबर ऑफ मतलब क्या करता है? टाइम? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। जैसे एक हाँ जैसे एक अल्फा पार्टिकल आया आपका, उसने एक जो गैस है उसको आयनाइज किया, ठीक है। तो आयनाइज करेगा कि मतलब जो ऑर्गन आपका ऑर्गन गैस का मॉलिक्यूल एटम था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक आयन आया। आयन को कैथोड में जाना है और इलेक्ट्रॉन को वायर में रहना है। तो वायर के थ्रू सर्किट में जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, करंट फ्लो होगी, उसके थ्रू आपका काउंट हो जाएगा, एक काउंट, ठीक है। यस मैम। तो वो बेसिकली अल्फा पार्टिकल आया, काउंट हुआ, दूसरा अल्फा पार्टिकल आया, दूसरा काउंट हुआ, तीसरा अल्फा पार्टिकल आया, तीसरा काउंट हुआ। तो वही हमें काउंट करना है ना कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से। ओके तो बेसिकली कितने रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स निकल रहे हैं उसको काउंट कर रहा है जीएम काउंटर। सो एज आई टोल्ड यू कि डेड टाइम जबकि काउंटर कोई काउंट नहीं कर रहा है, और रिकवरी टाइम जब दोबारा से काउंटर ने काउंट करना स्टार्ट किया। तो डेड का टाइम और रिकवरी टाइम दोनों इंपॉर्टेंट है। डेड टाइम इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम जीएम काउंटर को डेड नहीं करेंगे तो वो सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस गैस के अंदर होंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो काउंट की फॉर्म में ले लेगा, और काउंट की फॉर्म में जैसे ही लेगा वैसे ही आपके नंबर ऑफ काउंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जबकि आपके जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं वो उतने नहीं है। अल्फा पार्टिकल जो निकल रहे हैं वो कम है, लेकिन मान लो अल्फा पार्टिकल निकले आपके 5 और काउंट आपके एकदम से आ गए 50, तो देर इज समथिंग रॉन्ग इज देयर। तो समथिंग उसको हटाने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, बीच बीच में दो काउंट के बीच में जीएम काउंटर काम करना बंद कर देता है, ताकि जो काउंट आए हमारे वही काउंट आए जो आपके पार्टिकल्स की वजह से हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से जो करंट फ्लो हो रही है, अगर उनकी वजह से आपके सारे काउंट आ जाएंगे तो यू विल गेट फॉल्स काउंट्स। So this is the counting efficiency. It depends on some parameters. Let me skip this.
एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गीगर प्लेट्यू, किस पर्टिकुलर वोल्टेज पे आपका गीगर मोलर काउंटर वर्क करेगा। तो ये बेसिकली एक ग्राफ होता है जो कि अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी हमें अगर हमें आयनाइज करना है गैस को। तो आयनाइज करने के लिए हमें हाई वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी और काउंट रेट और अप्लाइड वोल्टेज के बीच में, तो देयर इज अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिस वोल्टेज के बाद आपका काउंट रेट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, नंबर ऑफ काउंट रेट, बट वी डोंट वर्क इन दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल काउंट रीजन। प्रोपोर्शनल रीजन का मतलब है अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो काउंट रेट भी बढ़ता जाएगा, लेकिन प्लेट्यू रीजन में काम करना होता है जहां पर हम पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं वोल्टेज। आई विल शो यू दिस, यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इस वोल्टेज को अप्लाई करने के बाद भी अगर काउंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो दैट इज कॉल्ड गीगर प्लेट्यू। तो गीगर प्लेट्यू रीजन में हमें काम करना होता है, अप्लाइड वोल्टेज शुड बी इन बिटवीन सो दैट द काउंट इज सेम, वोल्टेज बढ़ाने के बाद भी काउंट सेम रहते हैं। इसके बाद अगर हम वोल्टेज और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बेसिकली आपका पूरी गैस आयनाइज होने लगेगी और कंटिन्यूस डिस्चार्ज होगा। इस रीजन में भी हमें काम नहीं करना है और इस रीजन में भी हमें काम नहीं करना है। गीगर मूलर काउंटर शुड बी इन बिटवीन दीज टू। तो जहां पर वोल्टेज इंक्रीज करने के बाद भी आपका काउंट कांस्टेंट रहे। when voltage, this line is important, when voltage is increased beyond threshold, the counting rate remains the same for large variation. This straight portion of curve is called the Geiger plateau. So इस portion में we have to work. So this is the quenching term which is very important. quenching के लिए हमें basically क्या करना होता है, क्वेंचिंग इज बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि गीगर मूलर काउंटर में काम करते टाइम फॉल्स काउंट्स ना आ जाएं। काउंटर द फिनोमिनन क्वेंचिंग इज टू सेव द काउंटर फ्रॉम स्पूरियस काउंट्स। इट इज बिकॉज ऑफ द अल्फा बीटा डिके और इट इज बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, क्योंकि जब हम गैस को आयनाइज कर रहे हैं तो आयंस भी हैं उसमें और इलेक्ट्रॉन्स भी है, उनकी एनर्जी भी कुछ है, वो दूसरे गैस एटम से इंटरैक्ट करके उनको आयनाइज कर सकते हैं। अगर उनको आयनाइज कर देंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल फर्दर इंक्रीज। तो काउंट बेसिकली अल्फा बीटा गामा डीके की वजह से ही है या किसी और वजह से आ रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो द फर्स्ट पल्स इज डिटेक्टेड बाय हिटिंग द इलेक्ट्रॉन टू द एनोड, पहले इलेक्ट्रॉन की वजह से जो डिटेक्ट हुआ, इट एमिट सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन हमें नहीं चाहिए। तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन अगर सिस्टम के अंदर आ गए तो एकदम से आपके काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्वेंचिंग वाला टर्म लगाते हैं। तो क्वेंचिंग करने के लिए इस तरह से वोल्टेज को मॉडिफाई किया जाता है जिसकी वजह से बेसिकली आपकी वोल्टेज तो चेंज हो रही है लेकिन काउंट चेंज नहीं हो रहा है। जो प्लेट्यू रीजन है, वोल्टेज चेंज हो रही है लेकिन काउंट चेंज नहीं हो रहे हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट वी आर चेंजिंग द बायस, वोल्टेज चेंज कर रहे हैं लेकिन प्लेट में कोई करंट नहीं है। तो प्लेट में करंट तब तक नहीं होगी जब तक कोई नया अल्फा पार्टिकल नहीं आता है। अल्फा पार्टिकल आएगा तो करंट होगी, अल्फा पार्टिकल नहीं आएगा तो करंट नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग। तो दो तरफ से क्वेंचिंग हम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक क्वेंचिंग तो मैंने बताया कि ऑर्गन के साथ हम एथिल अल्कोहल मिक्स कर देते हैं। एथिल अल्कोहल 10% एथिल अल्कोहल मिक्स करने का क्या कारण है? कारण यही है कि हमें बेसिकली सिस्टम को क्वेंच करना है जिससे कि फॉल्स काउंट ना आ जाए सिस्टम, मतलब जीएम काउंटर से हमें काउंट जो मिले वो फॉल्स काउंट ना मिले, सही मिले। तो एथिल अल्कोहल पार्ट जो होता है वो क्या करता है, वो बेसिकली इट बेसिकली व्हाट इट डू, जो आपके पॉजिटिव आयंस हैं जो कि कैथोड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको पहले ही वो डिस्चार्ज कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करेगा तो वोल्टेज चेंज नहीं होगी और वोल्टेज चेंज नहीं होगी तो आपके काउंट भी तभी चेंज होंगे जब आपका अल्फा मतलब रेडियो एक्टिव डीके होगा आएगा ट्यूब के अंदर, तभी आपका काउंट मिलेगा, अदरवाइज काउंट नहीं मिलेगा। सो दिस इज ऑर्गेनिक क्वेंचिंग वेयर वी आर एडिंग द एथिल अल्कोहल विद द organ gas. There is another quenching type which is where हम halogen gas add कर रहे हैं in terms of with the organ or neon gas 0.1% of chlorine is added and ये क्या करते हैं, they are basically they also help in quenching and quenching में help करते हैं by again neutralizing the positive ions so that there are no false counts inside the system.
सो एज आई टोल्ड यू एप्लीकेशंस, इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन यही है कि अल्फा बीटा पार्टिकल्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं और गामा भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और न्यूक्लियर पार्टिकल्स अदर देन अल्फा बीटा गामा आल्सो इट कैन बी डिटेक्टेड, or cosmic rays intensity and cosmic ray events can also be detected by using this GM counter. So it is widely useful for other applications also other than nuclear radioactive decay. It is used for other radiations also. एक इसका ड्रॉबैक यही है कि क्योंकि डेड टाइम होता है बीच में हमें इसको चेंज करना आई मीन इसको डेड रखना पड़ता है। एक बार डिटेक्ट किया फिर थोड़े टाइम के लिए डेड रहेगा, फिर दोबारा से डिटेक्ट करेगा। वो तभी डिटेक्ट करेगा जब आयनाइजिंग रेडिएशन आएगा। अगर बीच में डेड ना करें तो इट विल कंटिन्यूसली डिके। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिससे कॉन्टिन्यूसली अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट हो रहे हैं, तो ये डिके की वजह से क्या होगा, इट विल नॉट बी एबल टू मेजर दी हाई रेडिएशन रेट्स। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ आ रहे हैं तो उस केस में डेड टाइम क्या करेगा, इसको लिमिट कर देगा। तो जो काउंट होंगे वो एक्चुअल काउंट नहीं होंगे। द मेन लिमिटेशन ऑफ जीएम काउंटर इज द inability to measure high radiation rates due to the dead time of the tube. This is the insensitive period after each ionization of gas during which any further incident radiation will not be result in count. So that time जो है एक तरह से फायदेमंद है। अगर एक एक करके रेडिएशन बहुत टाइम बाद आ रहा है, अगर बहुत टाइम बाद रेडिएशन आ रहे हैं तो उस केस में डेड टाइम इज यूजफुल। बट अगर रेडिएशन बहुत कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं विद इन नैनो सेकेंड्स, उस केस में डेड टाइम विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। डेड टाइम की वजह से तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी और जो काउंट होंगे वहां पे आपके एक्चुअल काउंट नहीं होंगे, कम होंगे। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। एंड सेकेंड इज इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर द एनर्जी रेडिएशन। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है कि हम लोग जो फोटोन है, गामा फोटोन तो जो न्यूक्लियस से निकल रहे हैं वो तो हम कर पा रहे हैं। क्या हम जो एक्सरे या गामा रे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, क्या उसको भी मेजर कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अलग से इंस्ट्रूमेंट यूज करना होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। Any query from the side of participants? थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स को कुछ पूछना है? यू मे आस्क योर क्वेश्चंस। कुछ स्टूडेंट्स ने तो बीच में ही पूछा था और चैट बॉक्स में भी पूछा था, तो मैंने उसका रिप्लाई कर दिया था। एनी क्वेश्चन? पार्टिसिपेंट से कुछ पूछना है? ओके, डॉक्टर भावना जोशी did his MSc from GB Pant University of Pantnagar, Uttarakhand, and her PhD from IIT Delhi. Dr. Bhavana Joshi explained beautifully the introduction of the nucleus and the stability and instability of the nucleus, nuclear compositions, and what is the role and importance of the nuclear forces in the nucleus. She explains beautifully in detail. What is the reasons for different decays? She explained how the beta particles emit from the nuclear process and how number of neutrons and protons decide the stability of the nucleus. Dr. Joshi explained the basis of nuclear decays and what should be the precautions and the quantum mechanics of alpha decay. What is the detection technique of radio decay? Dr. Joshi explained GM counter, its constructions and the working of GM counter, how we can count alpha particles using a GM counter, and quenching, that is a very important terms in reference of GM counter. She explained beautifully the quenching, process of quenching, importance of quenching and types of quenching. Thank you very much, Dr. Bhavna Joshi, for giving your valuable time in the welfare of the society, in the welfare of the students. And I hope कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो इस लेक्चर से काफ़ी लाभान्वित होंगे। दे विल बी वेरी बेनिफिशियल। और ये लेक्चर बेसिक है, बट इसमें जो बीच में जो बारीकियाँ थी, जो इसकी माइक्रोस्कोपिक जो टर्म्स है इसके अंदर, वो बाकी में जानने की ज़रूरत थी। और ये लेक्चर केवल आप लोगों के जो एकेडमिक इन्हांसमेंट है उसके लिए नहीं है, बट आपका जो मैंने बताया था कि दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
वेरियस कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस ऑल्सो। आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उनके सिलेबस में आता है। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर भावना जोशी मैम फॉर Thank you, sir. Thank you for inviting me to deliver this lecture. I also learned a lot while preparing this lecture, as this is also new. I mean, I have not taught this course, so it was also a good learning experience for me. Thank you so much. ओके। और हम पूरे 20 तारीख तक, 20 अगस्त तक 7 बजे मिलेंगे। दिस सीरीज विल स्टार्ट एट 7 PM डेली अप टू 20 अगस्त। तो स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन and enjoy the series. Thank you ma'am, thank you all the participants for participating the first day. Thank you. सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर ये स्लाइड्स ग्रुप में प्रोवाइड की जा सकती हैं? नहीं, इसका मैं लिंक भेजूंगा। इसका हमने क्या है, रिकॉर्डिंग की है, एंड इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो उसका लिंक आपको थोड़ी देर में इस ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है ना।